थैंक यू, थैंक यू। द साकिब जी आ जाओ, थर्ड सेशन हाँ स्टार्ट करें। So the third session is Azad Hind Fauj and Punjab, and it's chaired by Professor Makhan Lal ji. Sir, Makhan Lal जी, हाँ, मक्खन लाल जी से निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं। मक्खन लाल जी से, हाँ। And the speakers for this session are Professor Kapil Kumar ji and पहले तिवारी सर बोलेंगे। जी सर, वो मक्खन लाल जी भी आ जाए। हाँ सर, अच्छा अच्छा, 20 तो नहीं है सर, 8-10 हैं। हाँ चल ठीक है, मक्खन लाल जी सर आप आ जाएं जी। The chair is Professor Makhan Lal ji. He has 40 years of teaching experience. He was HOD in the and a director both in the Institute of Heritage Research and Management. Deputy Director Archaeology ANU. His PhD from Pune University. Honorary Fellow 2014 as on date of the Vivekananda Institute. And currently Jawaharlal Nehru Senior Fellow at the Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi. So he will be chairing this session. Our first speaker is Dr. Sushil Tiwari. He is a well-known author and researcher, currently associated with Center for Freedom Struggle and Diaspora Studies, IGNOU, New Delhi. He has a PhD from JNU. Key areas of study and research are literature, history, culture, and geopolitics. Very interesting combination, Sushil ji. And of course, the second speaker, the final speaker of the seminar sessions is Professor Kapil Kumar ji. Needs no introduction at all to all of us, but still, we have to know that he is currently the Senior Fellow of the Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi. He has been the Chief Historian for 4 museums at the Red Fort. Former Director, Center for Freedom, Struggle and Diaspora Studies, IGNOU. Chairperson, Faculty of History, School of Social Sciences. His current and latest book on Netaji is titled Netaji, Azad Hind Sarkar and Fauj, Removing Smoke Screens 1942 to 1947. And this is a beautiful book which showcases not only the life of Netaji, but as the subtitle suggests, has managed to remove quite a few smoke screens that existed in the public consciousness and public domain on Netaji. And the entire world is able to look at contributions of Netaji and some of the myths around him in a new perspective and a greater light because of years of research that Professor Kapil Kumar ji has on this subject. So I invite the Ganmanya Chair, Professor Makhan Lal ji. Sir, please kindly come to the stage and take your seat. I invite Dr. Sushil Tiwari ji to come on the stage. And I invite our very own legendary Professor Kapil Kumar ji to come on the stage for starting the third session of the seminar, which is titled Azad Hind Fauj and Punjab. Our first speaker will be Dr. Sushil Tiwari ji, followed by Professor Kapil Kumar ji, and then we'll have the chair remarks by Professor Makhan Lal ji. Sir, आप लोग तीनों बैठे। कुछ लोग अभी भी फॉयर में खड़े हैं जो वो आर स्टिल नॉट हैविंग लंच। साकिब जी उन्हें बुला लें प्लीज़। आप लोग जो ज़्यादा कुछ पीछे हैं तो मैं हॉल थोड़ा सा हो रहा है हेजी, आई कांट सी। आगे आ जाएंगे तो यू विल बी एबल टू हियर आवर स्पीकर्स इवन बेटर। निवेदन है आप आगे आ जाएं। आ गए बस, एक्सेप्ट फॉर दोज 5-6 पीपल जो आ जाएंगे अभी। ठीक है सब।
Sushil sir, the manch is yours. Aye. Please. सर शुरू करें। सबको नमस्कार। इस सेशन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर मक्खनलाल जी, डैश पर विराजमान आदरणीय प्रोफेसर कपिल कुमार जी और सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो सेमिनार है उसका विषय है पंजाब और उससे जुड़ी हुई स्वाधीनता संग्राम की स्मृतियाँ, और ये सेशन जो है वो आईएनए और पंजाब को लेकर के है। इनॉग्रल कमेंट में कपिल सर ने बहुत सारी बातें कह दी हैं और वो आगे भी उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लेकर बोलेंगे। मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो मूलतः आईएनए और उसकी लिटरेरी एक्टिविटीज़ को लेकर के है, और मैं कुछ इतिहास के पन्नों को भी उभारने की कोशिश करूंगा। इसका नाम है रंग दे बसंती चोला। एक नज्म है जिससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। एक बहुत फेमस फिल्म है, उसको गाने के रूप में भी फिल्माया गया। ये तेरा जो जिक्र है, ये तेरा जो जिक्र है, वो जिक्र है या इत्र है। महकता हूँ, चहकता हूँ, बहकता हूँ, शोलों की तरह दहकता हूँ, महकता हूँ, चमकता हूँ, बहकता हूँ। ये तेरा जो जिक्र है, ये इत्र है या जिक्र है। जब भी हम अपने फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं तो मुझे बार बार ऐसा लगता है, और मुझे लगता है आप सबको यह लगता होगा, कि उन्होंने जो बलिदान दिए उसकी सोंधी सोंधी खुशबू अभी भी हमको मिलती रहती है। जन जन में वो हैं जिसको हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको हम फोक कहते हैं, हालांकि उसका लिटरल ट्रांसलेशन वो मैं नहीं मानता, वो उसमें भी हैं। लेकिन सबसे दुखद यह है कि इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में वो नहीं है। हैं भी तो जिस रूप में होने चाहिए वो नहीं है। मुख्य धारा के इतिहास लेखन में वो नहीं है, और कुछ हैं भी तो जिस रूप में होना चाहिए था वो नहीं है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, इसका एक प्रमुख लक्ष्य यह भी है कि इस तरह के जो अननोन फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको सामने लाया जाए, और सिर्फ इतिहास के पन्नों को ही ना उघारा जाए, बल्कि उसके जरिए एक ऐसी शुरुआत की जाए कि आगे की आने वाली पीढ़ियों को हमारा सही इतिहास पता चले। और राष्ट्र के निर्माण का जो बीड़ा इस सरकार ने उठाया है, पहले की सरकारों ने भी किया है और आगे भी करेंगी, वह सही रास्ते पर चले। मैं अपने प्रेजेंटेशन में 3-4 लोगों के नाम लूंगा और उनका जो कंट्रीब्यूशन है अपनी क्रिएटिव राइटिंग के जरिए आज़ाद हिंद फौज को, उसके बारे में बात करूंगा। और चूंकि पंजाब की बात हो रही है तो मेरा प्रयास ये है कि ये सारे लोग पंजाब के ही हों, और जब मैं पंजाब की बात कर रहा हूं तो मैं आज़ादी के पहले की पंजाब की बात कर रहा हूं, और जब मैं भारत की बात करूंगा तो मैं अखंड भारत की बात करूंगा, और फिर अंत में मैं पार्टीशन पे कुछ बात रखूंगा। हम सब आज़ाद हिंद फौज के गाने सुनकर बड़े हुए हैं। कुछ लोगों को ये पता है कि आज़ाद हिंद फौज के गाने हैं, कुछ को पता है कि नहीं हैं या हैं, लेकिन वो गाने आज़ाद हिंद फौज के ही हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, ये कौम पे लुटाए जा। इस तरह के, जिसको कौमी तराना नाम दिया गया था, इस तरह के बहुत सारे गानों को अपनी धुन से संवारने वाले और उनकी लिरिक्स को भी संवारने वाले कैप्टन राम सिंह ठाकुरी, जो कि उस समय के पंजाब में स्थित धर्मशाला में पैदा हुए,
मूलतः वो नेपाली थे, यानी उनके परिवार के लोग नेपाल से माइग्रेट होकर के आए थे, धर्मशाला में रहते थे और उनके परिवार में भी संगीत की शिक्षा दीक्षा की एक परंपरा थी। बाद में वो सेना में भर्ती हुए और ईस्ट एशिया में चले गए। वहाँ पर जब उन्हें पता चला कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई है और उस समय ये लोग युद्धबंदी के रूप में अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिए गए थे, तो यह भी उसमें शामिल हुए और धीरे धीरे नेताजी का ये पूरा एक इस तरह का दृष्टिकोण रहा कि साहित्य, कविता और संगीत के जरिए भी अपने न सिर्फ सैनिकों में बल्कि इसके द्वारा उस पूरे माहौल में कैसा जोश भरा जाए जिससे जो ये धारा चल निकली है आज़ाद हिंद फौज की, ये और सशक्त रूप में परिलक्षित हो। तो पहले आज़ाद हिंद फौज के कुछ आरंभिक दिनों में वंदे मातरम गाया जाता था। बाद में यह तय किया गया कि एक ऐसा राष्ट्रगान निर्मित किया जाए जिससे कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व झलकता हो, क्योंकि वंदे मातरम के साथ लोगों को दिक्कत यह लगी कि वो एक तो संस्कृताइज्ड था और उसमें बंगाली के भी बहुत सारे शब्द थे। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने जो रानी झांसी रेजिमेंट चलाया करती थी, उन्होंने अपने रेजिमेंट में एक दिन सुभाष बोस जी आए थे, तो जो बंगाली वर्जन है जनगण मन का वो वहां पे प्रस्तुत किया। सुभाष जी इससे बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि इसी को अब हमें आजाद हिंद सरकार का राष्ट्रगान बनाना है। और कैप्टन राम सिंह ठकुरी को यह दायित्व दिया गया कि आप इसकी ट्यून को बनाएं, इसकी लिरिक्स को और पॉलिश करें और इसको जब कैथे हॉल में हमारी मीटिंग होगी तो उसमें प्रेजेंट करें। और नेताजी के शब्द थे कि राम सिंह, जब यह गाना कैथे हॉल में बजेगा तो इसका प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि इसकी दीवारें टूट जाएं, छत उड़ जाए और आसमान से देवी और देवता और अन्य भी जो हमारे पूर्वज हैं वो हम पे हर्षातिरेक से इस तरह का आशीर्वाद दें कि हमारा देश जल्दी स्वतंत्र हो जाए। राम सिंह ठकुरी को उसके बाद जर्मन ऑर्केस्ट्रा के साथ भी रह करके इसको सीखने का अवसर मिला और उन्होंने यह गाना बनाया जो आज हम सबके सामने है। उसके बाद और भी बहुत सारे गाने कैप्टन राम सिंह ठकुरी ने बनाए। इन गानों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा आजाद हिंद फौज को मोबिलाइज करने में, ईस्ट एशिया में भी। और बाद में जब आजाद हिंद फौज के लोगों को बंदी बना करके भारत लाया गया, उन पर मुकदमे चलाए गए, तो ये गाने जन जन की आवाज बन गए। जब मैं इन गानों को और इन कविताओं को एकत्र कर रहा था तो मुझे उस समय के समाचार पत्रों में ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें मिली कि अंग्रेजों ने इन गानों को जब्तशुदा की श्रेणी में डाल दिया था और ये गाने जो गाते थे वो उनको पकड़ के जेल में डाल देते थे। गांधी और पटेल राम सिंह ठकुरी से मिलने के लिए लाल किले गए, दिल्ली कंटोनमेंट में थे ये लोग। तो इन्होंने वहां पटेल जी से अनुरोध किया कि हमें कौमी तराना गाने की इजाजत दी जाए। अंग्रेजों से इजाजत मांगी गई, सदाशयता दिखाई, उन्होंने इजाजत दे दी। वहां पर भी जो युद्धबंदी थे उनके बीच जो एक निराशा का माहौल था, जब वहां पे राम सिंह ठकुरी और उनके पूरे ऑर्केस्ट्रा ने, हालांकि ऑर्केस्ट्रा तो उनके पास नहीं था, लेकिन अपनी आवाज से ही जब कदम कदम बढ़ाया या गाना गाया तो वो जो जोश था वो फिर वैसा ही हो गया। बाद में देश जब आजाद हुआ तो लाल किले पर भी उन्होंने इस गाने को प्रस्तुत किया। दुखद स्थिति ये रही कि बाद में बहुत दिनों तक उनकी कोई पूछ नहीं की गई। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने कैप्टन राम सिंह ठकुरी को एक अच्छा ओहदा प्रदान किया, लेकिन अंत में किसी ने यह क्लेम कर दिया कि आजाद हिंद फौज के जो गाने हैं वो ओरिजिनली राम सिंह ठकुरी के गाए हुए नहीं हैं। इस कारण से कैप्टन राम सिंह ठकुरी की मानसिक दशा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। हालांकि वो क्लेम बाद में खत्म हो गया, लेकिन उस मानसिक अवसाद से उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी और वो स्वर्ग को सिधार गए। मुझे लगता है कैप्टन राम सिंह ठकुरी एक ऐसा नाम है जिस पे आगे और बात की जानी चाहिए कि किस तरह से म्यूजिक के जरिए, किस तरह से लिरिक्स के जरिए, किस तरह से कविताओं के जरिए हम न सिर्फ नेशनलिस्ट
भावनाओं को मोबिलाइज कर सकते हैं, बल्कि उनको और सशक्त रूप दे करके इस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं कि वह जन जन तक पहुंचे। दूसरा नाम जो है वो है सरदार राम सिंह रावल। सरदार राम सिंह रावल पंजाब के ही रहने वाले थे। काम करने के लिए ये भी ईस्ट एशिया चले गए और बाद में जब इनको पता चला कि आजाद हिंद फौज बनी है तो रास बिहारी बोस के साथ जुड़े और नेताजी ने जब आजाद हिंद फौज की कमान संभाली तो इनको पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाया गया और इन्होंने थाईलैंड, बैंकॉक और उससे जुड़े आसपास का जो भी एरिया था उसमें जो आईएनए का प्रचार प्रसार था उसका जिम्मा संभाला। जब जापानियों ने सरेंडर किया तो सरदार रावल अपने साथियों के साथ सरेंडर कर गए, लेकिन उसके बाद जब इनको टॉर्चर किया जाने लगा तो किसी तरह से ये निकल के वहां से भाग गए और भारत आ गए, इम्फाल पहुंचे और वहां से फिर उन्होंने अपने को अंग्रेजों के सुपुर्द किया और बाद में जो भारत में रिलीफ कमेटी बनी आईएनए को लेकर के उसके भी मेंबर रहे। मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूं जी, वो मैं कहने वाला था, वो सर ने अभी कहा बैंकॉक से 3000 किलोमीटर चल करके ये इम्फाल पैदल पहुंचे थे कि मुझे अपने देश पहुंचना है। मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इनकी जो किताब है आईएनए सागा वो सबसे बड़ा ऑथेंटिक दस्तावेज है आजाद हिंद फौज को समझने के लिए। अभी यहां पर बात चल रही थी और बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही थी कि आजाद हिंद फौज पे साहित्य लेखन, इतिहास लेखन उस तरह का नहीं किया गया। दुखद स्थिति यह है कि कुछ किताबें जो आई विटनेस अकाउंट है लोगों की, जो कि स्वयं आजाद हिंद फौज के किसी न किसी तरह से सहयोगी रहे, साथी रहे, उसमें शामिल रहे, उनकी किताबें जिनको अंग्रेजों ने बैन किया वो बाद में भारत में उस तरह से प्रसारित और वितरित नहीं की गई। भारत सरकार के अंतर्गत भी प्रकाशन विभाग चलता है, प्रकाशन विभाग से अलग अलग तरह के वांग्मय छपे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इन किताबों को छापने की जहमत हमारी सरकार ने नहीं उठाई। अगर ये किताबें लोगों के सामने आ गई होती, ये लिटरेचर लोगों के सामने आ गया होता, तो आज जिस आजाद हिंद फौज के बारे में हम बात कर रहे हैं शायद बहुत पहले यह बात पब्लिक डोमेन में चल रही होती। इसके बाद मैं तीसरा नाम लेना चाहूंगा ज्ञानी केसर सिंह। इनकी किताब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन ईस्ट एशिया है। ये सिविल एडमिनिस्ट्रेटर थे प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया के। और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जितनी किताबें छप रही हैं ये 1945-46 में छप रही हैं और कहां से छप रही हैं? लाहौर से छप रही हैं। अब आप ये देखिए कि एक तरफ भारत में विभाजन की बात चल रही है, मुस्लिम लीग कह रही है कि हमें पाकिस्तान चाहिए, और उसी समय ये किताबें वहीं से छप रही हैं लाहौर से, जिसको पाकिस्तान का भाग बनाने की बात चल रही है। ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि भारत में जो सांप्रदायिकता की समस्या पैदा हुई थी और उसके द्वारा तो देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ, वह एक्चुअली भारतीयों की कमी नहीं थी, वो उन नेताओं की कमी थी जो उस मसले को सुलझा नहीं पाए और देश का विभाजन हो गया। लेकिन आजाद हिंद फौज के जो भी लोग रहे, चाहे वो बाद में पाकिस्तान भी गए हों, जनरल कयानी थे, एहसान कादिर थे, हबीबुर रहमान थे, इन लोगों ने कभी भी उस तरह के कम्युनल सेंटिमेंट्स की बात नहीं की। एहसान कादिर तो अंत तक यह स्वीकार करने को तैयार नहीं रहे कि देश का विभाजन हो गया। तो ये किताबें लाहौर से छप रही थी। आजाद हिंद फौज और उससे जुड़े लोगों ने सांप्रदायिकता की समस्या को जिस तरह से सुलझाया, और उसके बहुत सारे उदाहरण उस समय के अखबारों में भी मिलते हैं जिनको मैंने जुटाया है। एक उदाहरण मिलता है गुजरात का। एक व्यक्ति है, उसका एक लड़का है, वो आजाद हिंद रिलीफ कमेटी का सदस्य है और उस समय अंतरिम सरकार के लिए चुनाव हो रहे हैं। तो वो फादर जो है मुस्लिम लीग को वोट देता है और वो लड़का जो है कहता है मैं मुस्लिम लीग को वोट नहीं दूंगा। वो फादर उसको घर से निकाल देता है, लेकिन वो घर से निकल जाना स्वीकार करता है, लेकिन मुस्लिम लीग को वोट देना स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो आजाद हिंद रिलीफ कमेटी का सदस्य है और उसके अंदर राष्ट्रीयता की वह भावना है जिस भावना को लेकर के नेताजी और आईएनए चले थे।
मुझे लगता है अगर आईएनए सफल हो गई होती, अगर नेताजी देश के पहले प्रधानमंत्री होते, तो शायद इस तरह की दुखद परिस्थितियां हमें देखने को नहीं मिलती। अनुज सामने बैठे हैं और इनका बहुत अच्छा काम है, अन्य लोगों का भी काम है कि किस तरह से देश का विभाजन बैठ करके मेज पर कर दिया गया। इस किताब के पहले ही पेज पर, जहां से शुरू होता है पहला पेज, वहां पे आईएनए मेमोरियल का चित्र दिया गया है और इसमें वह चित्र दिया गया है जो नेताजी वहां पर फूल चढ़ा रहे हैं और आईएनए मेमोरियल डेडिकेट कर रहे हैं। यह वही आईएनए मेमोरियल है, याद रखिए, जिस पर आजादी हमको मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने जाना तक गवारा नहीं समझा था। और वो क्यों नहीं गवारा समझा था? क्योंकि पंडित माउंटबेटन ने उनको कहा था कि आपको वहां नहीं जाना है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि यह दिखा रही है कि ये लोग किस तरह से देश को लेकर के सोचते थे। ये बहुत ही ऑथेंटिक अकाउंट है और इसकी जो फॉरवर्ड है वो शरदचंद्र बोस जी ने लिखा है। ज्ञानी केसर सिंह अपने बारे में लिखते हैं कि आई वेंट टू मलाया इन 1936 and from the very beginning associated myself with the Indian patriots and began to work for the movement in my own humble way. Just after the attack of the Japanese on Malaya, I along with some other friends started a paper called Azad Hind, and we began to activate propaganda in the British Indian Army, and Malaya began to active propaganda for the fight for the freedom of India. अब वो किताब ये क्यों छाप रहे हैं वो उन्होंने अंत में लिखा है। 46 की बात है। भारत इस समय, मैं ऑन द स्पॉट हिंदी में बोल रहा हूं ट्रांसलेट करके, भारत इस समय अपनी आजादी की लड़ाई के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। अब वह मंच तैयार हो चुका है जब हम औपनिवेशिक दास्ता पे अंतिम प्रहार करने जा रहे हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आशा थी, जो विश्वास था कि भारत एक दिन आजाद होगा, वह पूरा होने जा रहा है। मुझे लगता है कि इस पुस्तक की अब आवश्यकता और भी है, क्योंकि जिस तरह की विभाजनकारी गतिविधियां पूरे देश में आज उठ रही हैं, हम लोगों ने आजाद हिंद फौज में रहते हुए किस तरह से देश में एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए संघर्ष किया और किस तरह से अखंड भारत के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, उसको दिखाने के लिए यह पुस्तक आप सबके सामने प्रस्तुत है। यह उन्होंने उस भूमिका में लिखा है। एक और व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहूंगा, के.आर. पल्टा। इन्होंने भी आईएनए पे एक किताब लिखी, द एडवेंचर्स विद द आईएनए। मिस्टर पल्टा जब आईएनए बनी तो पंजाब में ही थे और इनके स्वयं के अकाउंट से यह पता चलता है कि गांधी जी का जो 1942 का सहयोग आंदोलन था उसमें भी इन्होंने भाग लिया। लेकिन जब इन्हें बाद में पता चला कि आजाद हिंद फौज ईस्ट एशिया में बनी है, तो ये पंजाब से चल करके वहां तक गए और उसमें जाकर के शामिल हुए। इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मुझे ही नहीं, मेरे दोस्तों को ही नहीं, आसपास के सब लोगों को यह ज्ञात था कि 1942 का जो आंदोलन है यह विफल होने वाला है। उनके शब्द हैं, वी ज्वाइंड द मूवमेंट टू प्ले आवर पार्ट, वी कुड नॉट क्लोज आवर ईयर्स टू द strikes of our bleeding motherland who called to all her children for help and who was being ruthlessly trodden beneath the British imperial's heel. तो अभी जो बात हो रही थी, कपिल सर बात कर रहे थे, उन्होंने उस गाने का नाम नहीं लिया, मैं गाने का नाम ले लेता हूं क्योंकि उस समय प्रोटोकॉल की बात थी। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इसको जनरल जीडी बख्शी सर बहुत बार दोहराते हैं। वो व्यक्ति जो कि उस आंदोलन का फर्स्ट हैंड अकाउंट जिसके पास है, जो उसमें भाग लिया, स्वयं कांग्रेस का सदस्य रहा, वो ये कह रहा है कि हमें पता था कि आंदोलन विफल होने वाला है और ये आंदोलन विफल हो गया और हमें अब यह भी पता था कि इसके बाद कुछ नहीं होना, जो स्थितियां चल रही हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम जाकर आजाद हिंद फौज में शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद ये लोग जाकर के आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। इस किताब का फॉरवर्ड लिखा है कैप्टन मोहन सिंह ने। उन्होंने शुरुआत की है इन शब्दों से अपने फॉरवर्ड की, दोज whom fate destroys blinds them first, यानी नियति जिनका अंत करना चाहती है उनको सबसे पहले अंधा कर देती है।
और उसके बाद वो पूरे फॉरवर्ड में लिखते हैं कि नियति ने अंग्रेजों को अंधा कर दिया है। इनको तो ये लगा कि लाल किले पे ट्रायल करके यह देशवासियों को एक सबक सिखाने जा रहे हैं, लेकिन मामला अब उल्टा पड़ गया है। जो काम हम लोग ईस्ट एशिया से नहीं कर पाए वो काम इन्होंने ये ट्रायल चला के कर दिया। अब सारा देश आईएनए के बारे में जानने लगा है और अब वह दिन दूर नहीं है जब देशवासी इसके विरोध में उठ खड़े होंगे। लेकिन इसी में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मोहन सिंह जी लिखते हैं और जो कि अब आज के रिसर्च में आ गया है कि आईएनए ट्रायल्स के होने के बाद नेवल म्यूटनी हुआ, एयरफोर्स में म्यूटनी हुआ और आर्मी में भी म्यूटनी हुआ। मोहन सिंह जी इस किताब के फॉरवर्ड में ही लिखते हैं कि मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं है जब भारत का हर एक व्यक्ति जो भारतीय सेना का अंग है वह आईएनए से प्रेरणा लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा होगा। और अंततः वही हुआ। मैं इन बातों को इसलिए आप सबके सामने रख रहा हूं, इन नामों को इसलिए रख रहा हूं कि एक तो ये लोग ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कम जानकारी है। दूसरी कि अगर हमें आईएनए के बारे में और खासकर पंजाब से जुड़े आईएनए के लोगों के बारे में जानना है तो मुझे लगता है कि हमें इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। इससे हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। अब मैं अपने दूसरे पार्ट पे आता हूँ। मैंने कपिल सर की प्रेरणा से काफ़ी मेहनत करके आज़ाद हिंद फौज पर जुड़े करीब 100 कविताएं संकलित की और उनके गीत भी संकलित किए 20-25 और उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी किया। हमने उनको प्रकाशित भी कर दिया है। ये गीत जो है ये मूलतः 1945 से 47 के बीच में छपे हैं अभ्युदय नाम के समाचार पत्र में। यह वह समय था जब देश विभाजन की तरफ बढ़ रहा था और हिंसा का चारों तरफ तांडव हो रहा था। और जब हम पंजाब की बात करते हैं तो हम विभाजन से कैसे मुंह चुरा सकते हैं। विभाजन की विभीषिका को सबसे ज्यादा तो पंजाबियों और बंगालियों ने ही झेला। इसलिए मुझे लगता है कि जब भी आजादी के आंदोलन की बात होगी और खासकर पंजाब की बात होगी तो विभाजन से मुंह बचा करके हम नहीं निकल सकते। मुझे बहुत आनंद लगा जब आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभाजन विभीषिका दिवस की घोषणा की और कहा कि हम स्वतंत्रता दिवस के पहले विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाएंगे। यह बहुत आवश्यक है। अगर हम उस इतिहास को नहीं समझेंगे तो आज इस तरह की विभाजनकारी गतिविधियां हमारे सामने सर उठा रही हैं, उनसे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। शैलेंद्र नाम के एक व्यक्ति थे जो अंग्रेज फिल्मों में भी गाने लिखा करते थे, बहुत बड़े गीतकार हैं। 1946 के अभ्युदय में इन्होंने एक कविता लिखी, प्रिय सुभाष आओ। इस कविता की 4 लाइनें मैं पढ़ता हूं। दृग 40 कोट यपलकले, नई भावना नई ललक ले, देश तुम्हें फिर एक झलक ले, अधिक न कल पाओ, प्रिय सुभाष आओ। इसके आगे की लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। विकट समस्या विकट खेल है, बेमौके का हुआ मेल है, बेहतर इससे हमें जेल है, तुम ही सुलझाओ, प्रिय सुभाष आओ। अस्थाई सरकार बन गई, कांग्रेस से भी लीग तन गई, दोनों दल में खूब ठन गई, छुरे भले चल खून गन गई, झगड़ा निपटाओ, प्रिय सुभाष आओ। यानी इनका यह कहना है कि ये जो लीग और कांग्रेस का प्रॉब्लम चल रही है, जो झगड़ा चल रहा है, बेसिकली ये सत्ता के लिए चल रहा है और इसको निपटाने के लिए सुभाष जैसे किसी ऐसे विराट व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो इन दोनों को एक कर सके या इनको समझा सके। 1948 में यह कविता एक और छपी है, आज राष्ट्र को पुनः सुभाष चाहिए, लेकिन वो उसके पहले की कविता प्रतीत होती है। कर्णधार देश के विभक्त हो रहे, शक्ति पा चुके मगर अशक्त हो रहे, जूझती जरा तरुण विरक्त हो रहे, दैन्य से स्वदेश को उबार जो सके, सैन्य शक्ति का वही विकास चाहिए, आज राष्ट्र को पुनः सुभाष चाहिए। बोस अंतर्धान होने के बाद भारत क्यों नहीं आए और उसके बाद उनका क्या हुआ, इसको लेकर के 2-3 तरह की बातें चलती हैं। अनुज सामने बैठे हैं, इन्होंने अपने रिसर्च से ये क्लिंच किया है कि गुमनामी बाबा ही बोस थे। एक ये भी चीज चलती है कि वो सोवियत संघ चले गए और कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो कि हबीबुर रहमान जी ने अंत तक कहा, बोस के कहने से ही ऐसा लगता है कि उनकी एयर क्लैश में मृत्यु हो गई।
लेकिन अब यह लगभग तय हो चुका है कि वो उसके बाद काफी दिनों तक जीवित रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रशेखर पांडे नाम के एक कवि हैं जो 1948 में लिख रहे हैं, आओ वीर सुभाष। अब ये कविता बहुत लंबी है, मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसमें वो बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि सुभाष क्यों नहीं आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि ये जो सरकार है हमारी, वो उनको युद्धापराधी ठहरा करके संयुक्त राष्ट्र संघ को दे देगी और उसके बाद उन पे मुकदमा चलेगा। शायद इसी डर से सुभाष नहीं आ रहे हैं। हालांकि वो उस कविता में आगे कहते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप आइए, क्योंकि पूरा भारत आपके साथ है और ये सरकार कुछ नहीं कर सकती, जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। देखिए, जो कविता होती है या जो साहित्य होता है वो वैसे हवा हवाई नहीं होता, वो कहीं ना कहीं समाज का एक ढांचे को परिलक्षित करने वाला होता है। इस तरह की और भी कविताएं उस समय मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस समय के जनमानस में यह बात कहीं ना कहीं तो चल रही थी कि सुभाष बोस नहीं आना चाहते हैं। तो क्यों नहीं आना चाहते हैं? क्योंकि ये जितने भी मैंने कलेक्शंस किए हैं, इसमें रेयरली ही कोई ये मान रहा है कि सुभाष बोस नहीं है। वो सब मान रहे हैं कि सुभाष बोस जीवित हैं और कभी ना कभी आएंगे। तो कहीं ना कहीं जनमानस में ये बात थी कि तत्कालीन सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के कारण सुभाष बोस वापस नहीं आना चाहते हैं। 1948 का ही एक न्यूज रिपोर्ट है अभ्युदय का, जो एक पंजाबी सज्जन ही है, आईएनए के ही हैं। वो उत्तराखंड, उत्तरांचल में उनका परिवार रहता है, वो वहां जाके रहते थे, आईएनए में भर्ती हुए और बाद में जब आईएनए पर मुकदमे चले तो वो छूट करके वापस चले गए अपने घर। वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का उसमें कटिंग है उस पेपर में, और उस समय गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश में ही आता था। कि पुलिस डिपार्टमेंट को यह निर्देश दिया गया है कि आप यह पता लगाइए कि यह व्यक्ति कहां रहता है, यह किससे किससे मिलता है, यह किससे किससे मिलता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसको कौन कौन लोग समर्थन कर रहे हैं, उनका भी पता लगवाइए। और अगर यह पता चल जाए कि ये इसकी आजीविका तक चलाने में कोई इसकी मदद कर रहा है तो उसको पकड़ के बंद कर दीजिए। बाद में नेताजी के परिवार की स्नूपिंग की गई, यह भी हमें पता चला, जो फाइलें आई। तो कुल मिला जुला के मुझे यह लगता है, और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे लोग इन चीजों से सहमत होने लगे हैं, कि आजाद हिंद फौज और नेताजी 45 के बाद भले अंतर्धान हो गए और आजाद हिंद फौज के लोगों ने सरेंडर कर दिया, लेकिन उनका जो समन्वित प्रभाव था, उसके बिना ना आजादी के आंदोलन का मूल्यांकन किया जा सकता है, ना भारत में राष्ट्रीय विचारों के पनपने का मूल्यांकन किया जा सकता है। और जो लोग बार बार यह बात कहा करते हैं कि अहिंसा से देश को आजादी मिल गई, तो उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए कि वही लोग, जो लोग अहिंसा के पुजारी बना करते थे, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय उन्होंने यह क्यों कहा कि भारत के लोग अंग्रेजों के लिए जाकर के लड़े। और आजाद हिंद फौज के हजारों लोगों ने जो जान दी, हमारे क्रांतिकारियों ने जो जान दी, और बाद में विभाजन के समय में जो हिंसा हुई, क्या वो हिंसा एक कैटेगरी में नहीं आती? इसका जवाब कौन देगा? विभाजन के द्वारा जो एक लकीर खींच दी गई, उस लकीर ने लोगों के हृदय में, लोगों के दिल में और लोगों के संसार में जो लकीर खींच दी, उसका जवाब कौन देगा? इतिहास यह सवाल पूछता रहेगा, यह सवाल कभी समाप्त नहीं होगा। और मुझे लगता है कि आज जब हम पंजाब और आईएनए के संबंध में यह बात कर रहे हैं, तो यह सवाल एक बार फिर से हमारे सामने उठकर खड़ा होता है। अब मैं कंक्लूड करूंगा, और कंक्लूड करूंगा आईएनए के गाने की ही 4 लाइन से, जो कैप्टन राम सिंह ठाकुरी ने कंपोज की, और शायद उन्होंने ही लिखी आबिद अली के साथ। और उसको ये लोग कव्वाली की शक्ल में गाया करते थे। मैं तो वैसा नहीं गा सकता, लेकिन मैं वो आपके सामने जरूर रखूंगा। आजादी खेल मत समझो, बड़ी मुश्किल से मिलती है, जो करते हैं ये कुर्बानी फकत उनको ही मिलती है। सिर्फ नारे लगाने से अगर आजादी मिल जाए तो फिर हम यूं कहेंगे वह बड़ी सस्ती ही मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
प्रोफेसर मक्खनलाल जी, साथियों, बड़ी खुशी है कि अनुज इज हियर. While writing this book for Netaji, Azad Hind Fauj and Arvind Sarkar, as I said in the morning that a number of revealing new facts were there. But the most revealing fact which I found, which has been there in the year, different people have talked about it, was the formation of the Azad Hind Fauj. जनरली ये पढ़ाया जाता है कहीं पे कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, कहीं लिख दिया जाता है जनरल मनमोहन सिंह ने फौज बनाई थी. लेकिन ये आज़ाद हिंद फौज जो है, ये उस गदर पार्टी के क्रांतिकारियों का रेडिशन और नतीजा था जो गदर पार्टी ने शुरू किया था. और वही तरीका, आजमाया हुआ तरीका कि जो 1857 में ब्रिटिश सोल्जर्स इंडियन ओरिजिन के जो थे उन्होंने रिवोल्ट किया था, वही चीज. और इसकी तैयारी जो है वो 1939 से शुरू हो गई थी. फॉर्मली 42 में बनती है जाके. रासबिहारी बोस और आनंद मोहन सहाय, ये भी नाम आनंद मोहन सहाय गायब हो चुके हैं हिस्ट्री बुक्स में से. सहाय की पत्नी को भेजा जाता है कि वो जाए नेताजी से बात करें, कुछ और जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनसे बात करें. और नेताजी उस समय अपने घर पे हैं. और दूसरी तरफ एक और आदमी अरुण दत्ता को भेजा जाता है कि वो चिट्ठियां लेकर के इनकी और कागज लेकर के कि मौलाना आजाद से, नेहरू से, इन सबसे बात करो जाकर के. वो व्यक्ति जाता है, नेहरू उसे डांट के निकाल देते हैं, कागज फाड़ देते हैं कि आनंद मोहन को बोलना क्या वो पागल हो गया है कि हम फासिस्ट के साथ मिलकर के अपनी आजादी की लड़ाई करेंगे. और यही सलूक उसके साथ मौलाना आजाद के घर पे होता है. हालांकि मौलाना आजाद ये कहते हैं, अच्छा कागज छोड़ दो, इन्हें साथ लेके मत जाओ, नहीं तुम्हें खतरा होगा. पहले मौलाना आजाद उसको बोलते हैं कि ये तुम लगता है ब्रिटिश जासूस हो जो पता करने आए कि हम क्या कर रहे हैं. और इन रेवोल्यूशंस में एक चीज जो मिली क्या, ओपन डॉक्यूमेंट था. लेकिन हमारे लोग उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं. जब के मुंशी ने ये लिखा था कि 1939 के अंदर मुझको, और बहुत गौर से सुनिए इस चीज को, कि मुझको वाइसरॉय ने एक आईबी की फाइल भेजी, सीक्रेट फाइल, ये जानते हुए कि मेरे गांधी से क्या रिलेशंस हैं, और ये कहा कि इस फाइल को गांधी को दिखा दीजिए. वो फाइल गांधी को दिखाई दी. गांधी थोड़ा हैरान हुए देख के, और बाद में वो फाइल मेरे पास आ गई और मैंने वाइसरॉय को फाइल लौटा दी. और उस फाइल में ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी ब्रिटिश की कि नेताजी जर्मन्स और जैपनीज से बातचीत कर रहे हैं. तो सारी कहानी सामने आ जाती है कि त्रिपुरी के अंदर नेताजी के साथ क्यों ये सलूक किया गया, क्यों उनको दोबारा कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से, मतलब जो पहला कांग्रेस की हिस्ट्री में आदमी प्रेसिडेंट बना था इलेक्शन के थ्रू जीत करके, उसको प्रेसिडेंट काम फंक्शन नहीं करने दिया जाता. और ये भी रिपोर्ट करती हैं जाकर के सती सहाय कि आपका मैसेज कन्वे हो गया है, और बोस एग्री करते हैं. उस समय तक सुभाष बोला जाता था, नेताजी नहीं बोला जाता था. नेताजी तो बाद में बोला गया. और आपको हैरानी होगी कि जिन 5 पहली प्लाटून जो डिफेक्ट करती है आईएनए की तरफ, अंग्रेजों की, अराकान के बर्मा फ्रंट के अंदर, उस प्लाटून के 5 सिपाही जो हैं वो नेताजी को 1939 से जानते थे. जब ये सिख प्लाटून कलकत्ता के अंदर पोस्टेड थी, तभी से इनके पूरे संबंध थे. और एक पूरी फाइल इस प्लाटून के डिफेक्शन के ऊपर मौजूद है
जिसमें वो सारी इंक्वायरी करके इंटेलिजेंस की इनके लिंक्स जो हैं वो दिए हुए हैं कि कैसे कैसे इनके लिंक्स उनसे कहाँ थे। और ये जो नेताजी का जाना है, मैं कभी इसे एस्केप नहीं कहता, लोग ग्रेट एस्केप कहते हैं, वो कहते हैं व्हाई एस्केप, ही वाज नॉट एस्केपिंग फ्रॉम एनीवन, ही वाज गोइंग विद अ मिशन टू फाइट अनदर वॉर। और उसके अंदर जो पंजाब के लोगों का उस समय जो रोल है, मास्टर तारा सिंह आके मिलते हैं कैलकाटा में, बातचीत होती है, किसी को नहीं मालूम क्या बातचीत होती है। और जो और पठान आते हैं, कलकत्ता का जो गुरुद्वारा है, जैसे मैंने सुबह भी बताया, वो तो एक बहुत बड़ा सेंटर था वहां। और मास्टर तारा सिंह ने 46 में ही एक मैगजीन निकलती थी लाहौर से, संत सिपाही, उस मैगजीन में ही लिखा है कि इनकी जो एस्केप प्लान थी, और जो व्यक्ति इनके साथ गया था उसने पेशावर से आकर के मुझे रिपोर्ट कर दिया था कि वो अपने डेस्टिनेशन पे ठीक ठाक पहुंच गए। तो नेताजी दिखाने को एक ट्रेवल कर रहे होंगे, पर नेताजी को भी जानते हुए इट इज वेरी श्योर नाउ कि देयर वर अदर पीपल। एक दो और स्टोरीज भी हैं जिन्हें हम वेरीफाई कर रहे हैं कि एक दिन दिल्ली में भी रुके हैं बीच में, जहाँ पे ये म्यूजियम बना है अभी दिल्ली में, कि ये पहले आने वाला उस तरफ वेस्ट दिल्ली की तरफ, वहाँ कोई नवाब साहब हैं जिनके यहाँ ये बात होती है कि वो मौजूद थे। और हनुमंत साहे का नाम चांदनी चौक के जो है काफ़ी आता है, रेवोल्यूशनरी है जो ये हार्डिंज बॉम्ब केस में और उसके अंदर जिनको सज़ा हुई थी अंडेमान्स की। और इनकी हनुमंत साहे की मुझे याद आ गया, बताना चाहूँगा, एक बड़ी खूबी इनको पढ़ते हुए मिली कि 15 अगस्त 1947 के बाद इन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया था, अपने घर में ही बंद रहते थे। लेकिन 15 अगस्त के दिन चांदनी चौक से जाते हुए लाल किले जाते थे, नेताओं को सुनते थे और फिर घर में आके बंद हो जाते थे। जब उनसे किसी ने पूछा कि ये आप क्या करते हैं, साल भर घर में बंद रहते हैं पर फिर लाल किले जरूर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, तो क्या आज़ादी का जश्न मनाने जाते हैं? तो नहीं, मैं ये देखने जाता हूं कि जिन्होंने क्रांतिकारियों की पीठ में छुरा घोंपा था, आज वो लाल किले पे खड़े होकर के जनता का बेवकूफ कैसे बना रहा है। ये हनुमंत राय के वर्ड्स थे। और खैर, तो उसके बाद जो चीज सामने निकल के आई, एक CIA के रिकॉर्ड्स मुझे मिले, किसी ने देखे नहीं थे, क्योंकि रिपोर्ट कहती है जर्मन एजेंट्स इन साउथ इन एशिया, और उसमें 100 पेज इंडिया के ऊपर। और जो भी आदमी अंग्रेजों से हिंदुस्तान में लड़ रहा है, उस हर आदमी को जर्मन एजेंट डिक्लेयर किया हुआ है, चाहे वो जयप्रकाश नारायण है उसमें, चाहे उसके अंदर वो ये अपना स्वामी सज्जनानंद सरस्वती है, चाहे NG रंगा है, सबको जर्मन एजेंट डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन उसमें एक बात कही कि सुभाष ने M ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। अब ये M का क्या मतलब है, मातृभूमि है, क्या है, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के जो ताल्लुक हैं वो सारे गदर पार्टी के जो क्रांतिकारी छाए हुए थे साउथ ईस्ट एशिया में और जर्मनी और अदर जगहों के साथ, उनके साथ इनके संबंध थे। और फिर ये आता है कि अफगानिस्तान में रहते हुए भी किस तरीके से इनकी बातचीत वहाँ पे राज बिहारी बोस और इन सब लोगों से हो रही है। और ये मत भूलिए कि बोस हैड मेट मेनी पीपल, इंडिया में जाने से पहले भी उनकी सावरकर से भी मुलाकात हुई है, और सरदार कावेश्वर से मुलाकात हुई है, कई पठान लीडर से मुलाकात हुई है, जयप्रकाश नारायण से, रोहिया से, सबसे इनसे मुलाकात करके अपने मिशन पे निकले हैं। और ये भी मत भूलिए कि बोस का पहला मिशन जो जाने का था वो जर्मनी जाने का नहीं था, कोई नाजी हेल्प लेने का नहीं था। हिज मिशन वाज टू अटैक इंडिया विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन। और जब सोवियत यूनियन ने रिफ्यूज कर दिया, देन ही गोज टू जर्मनी। और जो पहली इंडियन लीजन बनती है जर्मनी के अंदर, उसके अंदर पंजाब के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हमें उनके फोटोग्राफ्स मिलते हैं, लेकिन अफसोस यह है कि कईयों के नाम नहीं मिलते। और नाम ना मिलने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो मैंने कहा कि
अंग्रेज अगर ये दिखा देते कि 66,000 लोग उनकी आर्मी के डिफेक्ट कर गए आईएनए के अंदर, तो उनकी क्या इज्जत दुनिया में रह जाती है और उसका भारत की और फोर्सेस पे क्या असर पड़ता, वो सामने आने की बात है। लेकिन कई अननोन ऐसे हमारे सिख हीरोज हैं वहाँ पे। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है तो स्विट्ज़रलैंड के पास एक जगह है लेक कैस्केडे, वहाँ पे जो इंडियन लीजन के लोगों ने सरेंडर कर दिया, इंडियन लीजन इज एन आर्म ऑफ आईएनए ओनली, तो करीबन 1500 जो है उनको एक सिनेमा हॉल में बंद कर दिया जाता है और 2 दिन तक उन्हें भूखा रखा जाता है और उसके बाद में उन सबको गोली मार दी जाती है। ये वार क्राइम में नहीं आएगा, वो उसको वार क्रिमिनल डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन जो ब्रिटिश या अमेरिकन करें वो वॉर क्राइम्स नहीं होते, वो सब कोलेटरल डैमेज और उस कैटेगरी में आते हैं। और कई और ऐसे हमारे पास सिख और पंजाबी सोल्जर्स के फोटोग्राफ्स हैं जो वहाँ पे गन्स को मैन कर रहे हैं यूरोपियन फ्रंट के ऊपर, बर्फ़ के अंदर वहाँ पे मौजूद हैं। और कुछ उनके बाद में से जो सरेंडर हुए उनको जब वापस लाया गया यहाँ पे ट्रायल के ऊपर रेड फोर्ट पे, तो उनमें से कुछ के जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, उनके इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स सीएसआईडीसी की, स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया था इन लोगों को इंटेरोगेट करने के लिए, तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं। मेजर गुरमीत सिंह है, वो साफ कहता है कि नेताजी रशिया में मौजूद हैं, ये प्लेन व्लेन सब बकवास है स्टोरी, और हमको रिटर्न ऑर्डर्स आए थे कि आप रशिया की तरफ मूव करिए। और यहाँ ये ध्यान रखिए कि पूरे इंडियन लीजन को ये ऑर्डर्स थे जबकि वो हिटलर की तरफ से यूरोप में फाइट कर रहे थे कि दे आर नॉट सपोज टू फाइट अगेंस्ट रशिया। चाहे जर्मन कितनी भी कोशिश कर लें, जर्मन ऑर्डर्स भी दे दें आपको कि जाके रशिया से फाइट कीजिए, वो रशिया से फाइट नहीं करेंगे। और ये कैप्टन कहते हैं कि कई हमारे जो सोल्जर्स हैं वो मॉस्को चले गए। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है इसमें कि जब ये आज़ाद हिंद फौज बनती है तो इसको बनाने का व्यू तो सबसे पहले रासबिहारी बोस देते हैं, और उधर पहला निर्णय यह था कि राजा महेंद्र प्रताप को आईएनए का, ये आज़ाद हिंद सरकार का और आईएनए का चेयरमैन बनाया जाएगा। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप उस बात को सीक्रेट नहीं रख पाए, उन्होंने टोक्यो ब्रॉडकास्ट के अंदर, एक ब्रॉडकास्ट के अंदर बोल दिया। तो जापानीज ने उसको कहा कि फिर हम जब ये सीक्रेसी नहीं रख सकते तो हम इनको नहीं कर सकते, और तब वहाँ पे बोस का नाम आया। और बोस का जर्मनी से वहाँ जाना भी कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, इसकी प्लानिंग भी तभी 99 से चल रही थी पूरे उससे। और बोस जब जाते हैं, लेकिन उससे पहले जब आज़ाद आईएल इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और ये फॉर्मेशन होती है तो इसकी पहली मीटिंग रासबिहारी के कहने के ऊपर होती है बैंकॉक के अंदर। और अभी मुझे थाईलैंड से एविडेंसेस मिले हैं कि वहाँ पे भैयानाथ तिवारी, सरदार प्रीतम सिंह, सत्यानंद पुरी, ये भी पंजाब से थे, रघुनंदन शर्मा, ये भी पंजाब से थे, ईश्वर सिंह सरदार जी, ये भी पंजाब से थे, इनके साथ फ्यूजीवारा मीटिंग करते हैं। और प्रीतम सिंह और हैं पुराने गदराइट, और अमर सिंह पुराने गदराइट बुजुर्ग हैं। वहां यह तय होता है कि आईएनए का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद में प्रीतम सिंह और अमर सिंह फ्यूजीवारा के साथ जाते हैं सिंगापुर, और सिंगापुर के अंदर जो सरेंडर कर दिया था ब्रिटिश आर्मी ने जापानियों के खिलाफ, उसमें जो इंडियन सोल्जर्स थे वहाँ पे भी उनको अंग्रेज छोड़ के भाग गए थे इंडियन सोल्जर्स को। तो वहाँ फिर जनरल मनमोहन सिंह को पहला कमांडर इन चीफ बनाया जाता है आईएनए का। तो मैं समझता हूँ इतिहास में लोग ये समझते हैं कि जनरल मनमोहन सिंह ने फॉर्म की थी आईएनए, उस चीज़ को लोग ना समझे, वो ठीक नहीं है। डेफिनेटली ही वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ आईएनए, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। और इसी समय पे पाकिस्तान कह रहा हूँ, ये हमारे पंजाब के कई लोग वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे
जिन्होंने आगे जाके बहुत बड़ा रोल भी अपनाया है। और मैंने एक स्टडी कर रहा था मैं, तो नेताजी ने क्या किया कि जितने ऑफिसर्स थे ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, ये जो आईएनए में आए हैं, तो इनको एक एक रैंक ऊपर दिया है, 2-2 रैंक ऊपर दिए हैं इनको। कि अगर कोई सेकंड लेफ्टिनेंट था तो उसको कैप्टन दिया गया, अगर कोई हवलदार था तो उसको सेकंड लेफ्टिनेंट बनाया गया। और इस तरीके से एक लंबी लिस्ट हमारे पास है। कर्नल गुलजारा सिंह, कर्नल जीएस ढिल्लो से लेके सिंघाड़ा सिंह से लेके कई, अभी आज क्योंकि टाइम की वो है तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने कुछ वो स्टोरीज भी इसमें रखी हुई थी कि जिनको वो मेडल्स दिए थे नेताजी ने, 7 तरीके के मेडल्स जो बने हुए थे। उसके बाद में आप देखेंगे, वो मैंने सुबह जिक्र किया ही आपसे कि किस तरीके से शंघाई के गुरुद्वारे ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। और खाली गुरुद्वारा ही नहीं, शंघाई के अंदर सिखों के अलावा वहां पे हमें कई और नाम मिलते हैं इस तरीके के। वी पोपली का नाम है, कपाई है वहां पे एक, प्रेम सागर है, इसी तरीके से एक मेहतानी करके हैं, एक जैन करके हैं, कई नाम जो हैं पंजाब के वहां पे मौजूद हैं। और जब उन नामों को एक्सप्लोर करके और ढूंढा जाता है तो इनमें से करीबन 55-60% ऐसे लोग हैं जो गदर पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जो जा करके शंघाई में, हांगकांग में, इन जगहों में जाके बस गए थे और फिर वहां से यहाँ पे वापस आ जाते हैं। नानक चंद है, नानक चंद बहुत फेमस नाम है यहाँ पे। और ये लोग जिस तरीके से आईएनए को सपोर्ट करते हैं, आजाद हिंद सरकार को सपोर्ट करते हैं, मतलब बहुत हैरानी की बात ये लगती है कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया के सारे एरियाज में जब ये है, तो इवन चाइना के अंदर भी आजाद हिंद फौज मौजूद है, उसका ट्रेनिंग कैंप मौजूद है। और 2000 पंजाब के लोग वहाँ से जब आते हैं आईएनए को ज्वाइन करने के लिए 1944 के अंदर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरीके से थाईलैंड का जो मिला कि भैया तिवारी तो खैर यूपी से गए थे, इन्होंने अपनी 20 एकड़ ज़मीन दे दी थी थाईलैंड के अंदर ट्रेनिंग कैंप बनाने के लिए आईएनए का। और एक बात मान के चलिए कि अब ये बड़ा क्लियर सामने आ रहा है कि ऑफिशियल हेडक्वार्टर रंगून में था नेताजी का, लेकिन नेताजी की प्लानिंग को देखते हुए कि थाईलैंड वाज द सीक्रेट हेडक्वार्टर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज, इसीलिए वो लास्ट में जाने से पहले भी बैंकॉक आते हैं, अपनी कुछ चीज़ों को सेटल करते हैं वहाँ पे, वहाँ से जाते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम है कि एक बहुत बड़ी सम जो है नेताजी 17 अगस्त के दिन थाईलैंड की यूनिवर्सिटी को दे करके आते हैं, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट बनाने के लिए। और ईश्वर सिंह बहुत बड़ा मर्चेंट है, पंजाब से गए हुए, 100 किलो चांदी वहाँ पे नेताजी को देते हैं। एक अभी और नाम मिला, उनकी वाइफ की फ़ोटो भी मिली, वाइफ ने वो फ़ोटो खिंचवाई थी डोनेशन देने से पहले अपनी सारी ज्वेलरी पहन करके, और उस परिवार ने 10 किलो सोना उस समय बैंकॉक के अंदर जो है आज़ाद हिंद फौज को दिया है। और भी कई नाम हैं, को नेताजी अपनी पिस्तौल भी दे के गए हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, सरदार इनके धर्म सिंह सिरचवाला जी, उनके लड़के वो आए थे कि वो दोनों पिस्टल्स देना चाहते हैं हिंदुस्तान की सरकार को। वो आज शायद 3 साल से ऊपर हो गए, वो फाइलें मिनिस्ट्री के अंदर ही घूम रही हैं। और बड़ी हंसी आती है मुझे जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने मुझसे कहा कि इसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा कि ये नेताजी की पिस्टल है। भाई बैंकॉक में पूरी हिस्ट्री मौजूद है, वो मौजूद है, सारी एविडेंसेस मौजूद है, वो बिजनेसमैन बता रहा है। और ये क्या कि नेताजी दे के गए थे दोनों पिस्टल कि जब हम लाल किले पे दोबारा झंडा फहर जाएगा तो ये लाल किले पे मुझे वापस करना है इन पिस्टल्स को। वो दोनों पिस्टल्स मौजूद है। लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी ऐसी ब्यूरोक्रेसी है कि जो इन चीज़ों को कभी भी नेताजी से रिलेटेड चीज़ें जो है वापस नहीं आने देगी। मास्टर तारा सिंह का जवाब नहीं आईएनओ को अपनी सपोर्ट देने में। वो ये भी लिखते हैं कि जालंधर में जो पैराट्रूपर उतरे थे, वो पैराट्रूपर भी आके मुझसे मिले अमृतसर के अंदर, और पूरी सपोर्ट उस पीरियड के अंदर। और यही एक रीजन समझ में आता है मुझे कि मास्टर तारा सिंह से नेहरू ने जो दुश्मनी निभाई है
और मास्टर तारा सिंह से नहीं, मैं तो अब ये कहता हूं कि पूरे पंजाब से जो दुश्मनी निभाई है नेहरू ने, कि वो जो करतारपुर साहब तक को जो कि कितने किलोमीटर है, जो हिंदुस्तान में नहीं लिया जा सकता था, उसने पंजाब को, ही वाज नॉट बॉदर्ड एट ऑल, दोनों जगह के लिए, बंगाल के लिए भी बॉदर्ड नहीं था, जो मर्जी हो बंगाल में, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं हो तो शायद पूरा बंगाल चला जाए वहां पे उनके पास, चिटगांव के लिए बॉदर्ड नहीं था। वो इंटरेस्टिंग है, मैं 1946 की मेरठ की स्पीच देख रहा था इनकी, वहां एक नागालैंड से आया हुआ व्यक्ति कांग्रेस का कंप्लेंट करता है कि साहब नागालैंड के अंदर जो मिशनरी हैं वो नागा उसको भड़का रहे हैं कि इंडियन यूनियन को ज्वाइन मत करना, तो आप लोग कुछ करिए। तो नेहरू स्टेटमेंट देते हैं, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम नागालैंड, ऑन रिकॉर्ड। ये मैं इसलिए इंस्टांस कोट कर रहा हूं कि ये पंजाब के लिए जो सौतेला व्यवहार बनाया, सब कुछ जानते हुए भी कि पार्टीशन में वायलेंस होगी, सब कुछ होगा, वो सब कुछ नहीं किया। क्या रीजन है इसका? क्योंकि पंजाब में कांग्रेस का तो कभी रोल रहा ही नहीं, बड़ा नेग्लिजिबल रोल रहा है, वहां पे यूनियनिस्ट पार्टी रही। तो इन लोगों को इन्होंने, और हां, जनरल मोहन सिंह ने 47 के अंदर आईएनए को रिवाइव कर दिया था पंजाब के अंदर, सब आईएनए के एक्स लोगों को इकट्ठा करके, और उन्होंने वो जितनी वो लड़कियां वगैरह लाहौर और उनमें विमेन के साथ जो ह्यूमिलेटिंग केसेस हो रहे थे उनको बचाने के लिए वो पूरी की पूरी उन्होंने एक यूनिट आईएनए की पूरी खड़ी कर दी थी दोबारा, जिसको नेहरू ने बहुत विवेंटली अपोज किया था। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग लेटर मुझे इस पीरियड की मिलती है, आईएनए के लिए तो नेहरू कह रहा है इन्हें होमगार्ड बना दो, इनको सेना में नहीं लाना, वो एक और लंबी डिबेट है। सरदार बलदेव सिंह, हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर, इनकी एक चिट्ठी मिली है सितंबर 1947 की, सरदार पटेल को लिखी हुई, और उस चिट्ठी में बलदेव सिंह लिख रहे हैं कि अभी भी लाहौर में 20,000 सिख और हिंदू औरतें जो हैं वो इनके कब्जे में हैं, उनको छुड़ाया जाना चाहिए। और कुछ कई तरीके लिख रहे हैं उसमें, और फिर लिखते हैं कि मैं आर्मी नहीं भेज सकता इंटरनेशनल रीजंस की वजह से, तो आप आरएसएस के चीफ से बात करके और आरएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं उनको बुलवाइए कि वो जाके अटैक करें और वो उनको लेकर के आए। एंड ए कॉपी ऑफ दैट लेटर इज बैक टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये पब्लिक डोमेन में नहीं है अभी तक, अब मैं डाल दी है, अब शायद ट्विटर वगैरह पे डाली थी तो लोगों ने देखी होगी। और ये मत पूछिए कि लेटर मिली कैसे, वो किसी आर्काइव्स में नहीं मिली, किसी गवर्नमेंट की फाइल में नहीं मिली, लेकिन उस जगह पे मिली जो सरदार पटेल की कुछ फाइल्स जब उनकी डेथ हुई है उनके घर पे रह गई थी, तो उनके परिवार के साथ वो फाइल्स मौजूद थी, और अब एक ट्रस्ट के पास अहमदाबाद के अंदर वो फाइल्स मौजूद है पूरी की पूरी। लेकिन वो भी एक पंजाब का एक अलग एस्पेक्ट है। जितने लोग रिट्रेंच हुए, आई थिंक अबाउट 66,000 में से 30,000 से ज्यादा लोग पंजाब से थे। और पंजाब से मेरा मतलब है हरियाणा, हिमाचल, यूनाइटेड पंजाब, और कम से कम 45 लोग ऐसे हैं इनमें से इन एरियाज के जिनको तगमा शत्रुघ्नाश और तगमा भारत दिया गया। करण ढिल्लो को मत भूलिए, जीएस ढिल्लो। लाल किले पे जो मुकदमा चला वो तीनों पंजाब से थे, जीएस ढिल्लो, प्रेम सहगल, शाहनवाज, तीनों पंजाब से थे। और अब जब ढूंढने निकले हैं तो बड़ा अफसोस हुआ, अभी मैं नाम बना रहा था तो आईसीएचआर की जो मार्टेयर्स की डिक्शनरी है, केवल 1500 कुछ नाम लिस्टेड है आईएनए के मार्टेयर्स के। कैप्टन यादव की किताब में कुछ और बढ़ जाता हूं तो लिस्ट 2,500 तक चली जाती है, लेकिन बाकी जो समझिए 46-45 हजार लोग, उनका रिकॉर्ड कहां है?
और रिकॉर्ड मौजूद है हमारे देश में, क्योंकि जितनी आर्मी की यूनिट्स ने डिफेक्ट किया था आईएनए को, वो सारा रिकॉर्ड ब्रिटिश मिलिट्री रिकॉर्ड्स में मौजूद है, लेकिन वो फाइल्स स्कॉलर्स को ट्रांसफर नहीं की जाती। आप पता नहीं कौन सा स्टेट सीक्रेट उसमें आज भी आउट हो जाएगा। किसी भी आईएनए के ऑफिसर ने, इंक्लूडिंग शाहनवाज, 48, 49 या जब तक ये शाहनवाज अपनी वो कमेटी नहीं बनाने गया, किसी ने ये नहीं माना था कि नेताजी की डेथ हो गई है प्लेन क्रैश के अंदर। मई 46 में आईएनए रिलीफ कमेटी की मीटिंग होती है दिल्ली में, जिसमें चेयरमैन सरदार पटेल हैं। वेलकम एड्रेस शाहनवाज दे रहे हैं पंजाब से, और वेलकम एड्रेस देने के बाद में उस मीटिंग में 1 मिनट का मौन रखा जाता है, और सरदार पटेल की प्रेजेंस में है और शाहनवाज भी वहीं। और वो मौन इसलिए नहीं रखा जाता कि नेताजी की आत्मा को शांति मिले, बल्कि ये कहा जाता है कि नेताजी जहां पे भी मौजूद है वो वहां पे स्वस्थ रहे। 46 में टेलीज विद मेनी अदर एस्पेक्ट्स। इसके अलावा पंजाब का और बहुत रिकॉर्ड है हम पे, कि जो लोग सबमरीन से आए, पकड़े गए, उनके मुकदमे चले, लाहौर ट्रायल्स, इनके भी मौजूद है। जिन ट्रायल्स को सीक्रेट रखा गया, पब्लिक से छुपाया गया, सिर्फ एग्जीक्यूशंस के बाद खबर दी गई। और यही नहीं, जिस तरीके से आईएनए ने भारत लौटने के बाद में 45 से दोबारा मोबिलाइज करना शुरू हो गया, जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूं, तो बात बड़ी क्लियर निकल करके आ गई है कि नेताजी के जो आखिरी वर्ड्स थे कि वी आर डिसबैंडिंग टू रीअसेंबल अगेन एंड द स्ट्रगल मस्ट गो ऑन, वो इंस्ट्रक्शंस आईएनए को बड़ी क्लियर थी। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे आके मोबिलाइज करना शुरू किया, और जैसे फॉरवर्ड बना के कांग्रेस को रेडिकलाइज करने की बात 1939 में की थी, वही एफर्ट 1939 में शुरू हुआ। और हर अफसर ने, इंक्लूडिंग पंजाब, अपने गांव में जाकर के जो आईएनए का मैसेज दिया और जिस तरीके की जागृति फैली, उस पे जो मूवमेंट खड़ा हुआ है आईएनए ट्रायल्स के खिलाफ, उस तरीके का मूवमेंट और उस तरीके की एकता हिंदुस्तान के अंदर 1857 के बाद पहली बार दिखाई देती है। और कांग्रेस ने उसका खैर पूरा फायदा उठाया अपने इलेक्टोरल गेन्स के लिए, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन जो मूवमेंट है उस पर अगर आप ट्रिब्यून को पढ़ें, उसमें लाहौर को गजट को पढ़ें और अखबारों को पढ़ें उस पीरियड के पंजाब के, कि पंजाब से शुरू होकर के और नीचे केरला तक को मूवमेंट जाता है और लोग लड़ने को तैयार है। इसके अलावा बहुत से ऑफिसर्स हैं, एक ऑफिसर का मैं जिक्र और कर दूं, उसके बाद में मैं लेफ्टिनेंट पलटा, केएल पलटा और लेफ्टिनेंट मुलकर, इनकी किताबें हैं। पलटा की शायद है माई डेज विद आईएनए, एडवेंचर्स विद आईएनए, और उसकी है मुलकर की। लेफ्टिनेंट मुलकर और इसका साथी एक दलीप, 1942 में ये लोग जालंधर में हैं, और जालंधर में जब इन्हें रेडियो पे खबर सुनते हैं कि आजाद हिंद फौज बन गई है, तो ये लुधियाना जाते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, और ये दोनों व्यक्ति 42 में चलते हैं पंजाब से आईएनए ज्वाइन करके जाने के लिए बर्मा के लिए। तो आप समझिए कि करीबन 1.5 महीने का सफर तय करते हुए, कभी पैदल, कभी ट्रेन पे, कभी लॉरी में, कभी पुलिस को गच्चा देते हुए, ये बर्मा बॉर्डर पहुंचते हैं पंजाब से दोनों। और वहां पे जापानी ने अरेस्ट कर लेते हैं नेचुरली, समझ के ब्रिटिश स्पाई। और फिर ये रासबिहारी बोस से मिलते हैं और दोनों आईएनए ज्वाइन करते हैं। तो ये भी एक जज्बा पंजाब के यूथ के अंदर उस समय देखने में आया। और अभी ज्ञानी केसर सिंह का जिक्र तो सुशील ने किया ही, बहुत अच्छी किताब लिखी रावल की। मुझे जर्नलिज्म की हिस्ट्री में कोई जर्नलिस्ट नहीं दिखाई देता जिसने करीबन
3000 मील की यात्रा इस तरीके की हो, जो जर्नलिस्ट था, और उसके ऊपर फिर बाद उसने अपनी पूरी कहानी उसके अंदर लिखी कि परमा से आते हुए जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे के सारे उसके अंदर लिखे। तो मैं इतना ही कहूंगा आज कि पंजाब ही नहीं, नेताजी ने तो सारे देश को ही मोबिलाइज किया था, और शायद जो काम कभी कांग्रेस और गांधी नहीं कर पाए वो उन्होंने करके दिखाया। एक ही किचन से खाना, बिना तनख्वाह के। उनकी स्पीचेस पढ़िए, और कई ऐसे फर्स्ट हैं जो नेताजी ने किए। तो उम्मीद यह है कि अभी ये रिसर्च बहुत अधूरी है। अकेली इंटरोगेशन की ही शायद 20,000 फाइल्स हैं, मैं तो सिर्फ 300-400 ही देख पाया हूं अभी, जिंदगी लग जाए। लेकिन रोना इस बात पे आता है कि हमारे बड़े बड़े इतिहासकार जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं, आर्काइव्स में और सब जगह पे डॉक्यूमेंटेशन होने के बावजूद इनको किसी को फुर्सत नहीं थी कि या तो इसको खुद देख सके या अपने किसी स्कॉलर से ही दिखा सके, क्योंकि नेहरू भक्ति में इतने अंधलीन हुए थे, या दूसरी तरफ मार्क्सिस्ट भक्ति में इतने अंधलीन हुए थे कि वो नेताजी के नाम, और आज भी परेशान हो जाते हैं। आज मेरी किताब आने के बाद में 2 कांग्रेसी मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि इस किताब को बैन कराया जाए। हाँ जी, मेरी किताब को अमेजन इंटरनेशनल ने सेल करने से मना कर दिया, और जब उनसे पूछा गया तो बोले नहीं, हमारा कोई इंग्लैंड से पैक्ट है और इसमें हम पे शिकायतें आई हैं कि इस किताब के अंदर बहुत ज़्यादा इंग्लैंड और माउंटबेटन के खिलाफ या वो है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने पब्लिशर से कहा भी उनके एजेंट को बता दो कि मैं तो सोशल मीडिया पे जा रहा हूँ और मैं इसको बहुत बड़ा इशू बनाऊंगा। तो 2 दिन बाद अमेजन वाले क्या करते हैं कि किताब को सेल पे तो लगा देते हैं, पर नीचे पता क्या लिखते हैं, अभी 10 दिन किताब को आए हुए नहीं हुए हैं, आउट ऑफ स्टॉक, डोंट नो व्हेन इट विल बी अवेलेबल नेक्स्ट। तो आप समझ सकते हैं कि नेताजी पे काम करना इतना आसान नहीं है, और जिस सच को छुपाया जाता है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप पे 3 दिन पहले आ गया है। जो माउंटबेटन की डायरीज को ओपन और पब्लिक करने की बात थी, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा रोक करके और उसको छुपा दिया है। नहीं, हम और अनुज तो ये देख रहे थे अगर वो डायरीज बाहर आती हैं तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी थी कि आफ्टर 45 वो उसके बारे में, क्योंकि ही वॉज द एलाइड कमांडर एट दैट टाइम, सिंगापुर में उसी ने सरेंडर लिया था, तो क्या चीज़ सामने आती। बट अगेन सैल्यूट्स टू पंजाब, सैल्यूट्स टू पीपल ऑफ पंजाब कि दे कंटिन्यू विद दैट ट्रेडिशन। और आज भी हमारी आर्मी में पंजाब के जवान 24 घंटे खड़े होकर के हमारे देश की रक्षा करते हैं। जय हिंद। ये हमेशा बहुत सौभाग्य की बात होती है, लेकिन ऐसा सौभाग्य मिलता भी कभी ही है कि अपने किसी दोस्त 32 साल के दोस्त के लेक्चर को मैं प्रिसाइड करूं। बहुत कुछ साथ भुगता है, बहुत कुछ साथ देखा है, जिसको कहते हैं कि बहुत सी जगहों पे साथ मिट्टी डाली है। इकबाल इसका अर्थ बेहतर समझते हैं कि साथ मिट्टी डाली है। इन दोनों बहुत सुंदर भाषणों के बाद मेरे लिए कहने के लिए कुछ बचता नहीं, लेकिन नॉर्मली जो चेयर होती है वो बोलने की इजाज़त उसे नहीं होती, लेकिन समय बदल गया है। अब आप लोकसभा और राज्यसभा में देख रहे हैं कि चेयर ही बेचारा सबसे ज़्यादा बोलते हैं। और आदरणीय कुंवर जी का क्या था कि कुछ मैं बोलूं, तो मैं थोड़ा सा इतर बात करूंगा। और इतर बात शुरू करता हूं 1988 में। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में
था आर्कियोलॉजी का डिप्टी डायरेक्टर, वहाँ तत्कालीन यूपीएससी के जो चेयरमैन थे, कपिल यू हैव टू लिसन दिस, यूपीएससी के चेयरमैन थे प्रोफेसर यशपाल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हिस्ट्री की सेमिनार इनाग्रेट करने गए थे। ये ध्यान रखिएगा। अपने भाषण में वो कहते हैं, वाई शुड हिस्ट्री बी टॉट इन द यूनिवर्सिटीज़। हिस्ट्री हमको देती क्या है, लड़ाई झगड़ा करवाती है। मैं बहुत हैरान रह गया। उस समय तो नहीं बोला क्योंकि वो हमारे अतिथि थे, लेकिन उसके बाद मेरी उनकी मुलाकात एक टीवी चैनल पे हो गई। वो बाद में ये एक घटना है जो शिक्षा सिस्टम में एकदम टॉप पर बैठे हैं, वो कहें कि हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाए, हम क्यों ग्रांट दें हिस्ट्री को। जरा एक दूसरी घटना है जो सीधे आपसे संबंधित है। कौन बनेगा करोड़पति? इच्छा तो मेरी भी है बनने की, तकदीर में नहीं है तो नहीं बन रहे हैं। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति में 2003-4 की बात है, शुरू का पहला दूसरा है। उसमें अमिताभ बच्चन नॉर्मली जो पहला प्रश्न पूछते हैं बहुत सिंपल होता है, आप सब लोग जानते हैं, परिचय भी कराते हैं कायदे से। तो पहला आदमी जो था, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो पहला क्वेश्चन वो पूछते हैं, आदमी उनका परिचय कराते हैं। ही इज कंप्यूटर विजार्ड सॉफ्टवेयर के, और क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ इस सेट के साथ गड़बड़ हो जाए आप ठीक कर लेंगे। और उनका जवाब था इन नो टाइम, इन नो टाइम। अब उनसे जब पहला प्रश्न पूछा गया, कुरुक्षेत्र के मैदान में किसने किसको शिक्षा दी, 4 ऑप्शन थे। युधिष्ठिर ने भीम को दिया या भीम ने युधिष्ठिर को दिया, सही ऑप्शन भी था कृष्ण ने अर्जुन को। प्रश्न पूछा गया, शब्द उन्हीं का है, टिकटिकी चल पड़ी है, धीरे धीरे चारों ऑप्शन पढ़ के सुनाए जा रहे हैं। वो कंप्यूटर विजार्ड जिन्हें इस देश में इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, इस देश में पढ़ा लिखे की श्रेणी में रखा जाता है, वो जवाब नहीं दे पाए। अब दूसरा ऑप्शन है फोन ए फ्रेंड। फोन ए फ्रेंड में अपने वो एक मित्र को कहते हैं कि इनको लगाया जाए। पूछा गया कि ये कौन है, कहा जिस कंपनी में काम मैं करता हूँ उसके वो एमडी हैं। ही इज़ ए ग्रेट स्कॉलर, ही इज़ ए ग्रेट मैन, नॉलेजेबल। फोन लगाया जाए, ऑप्शन पढ़ दिए गए, 30 सेकंड उनके भी चले गए। अभी अपने नहीं हुआ, अभी ऑप्शन तो 3 थे, अब तो शायद 4 हो गए। तो अब ये था कि ऑप्शन चूज करना है, फोन ए फ्रेंड खत्म हो गया है। लिसन कपिल, ऑप्शन इज पब्लिक ओपिनियन। क्या कहते हैं उसको, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है आइडियंस से, ऑडियो इज। वुड यू बिलीव इट, 33% of the audience gave wrong answer. It is not a matter of laughing, it's a matter of great concern. हम अपने घर को, परिवार के, अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? हमारा प्रश्न सिर्फ यही था कि सब कुछ स्कूल में दिया जाएगा तो आप अपने बच्चों के माता पिता की हैसियत से, भाई बहन की हैसियत से क्या दे रहे हैं? एवरीथिंग शुड नॉट बी लेफ्ट टू हिस्टोरियन। आते हैं यशपाल पे, क्यों दिया जाए। आप जरा सोचिए हिस्ट्री क्या है, ये आपकी याददाश्त है ना। हम यहाँ से आए, यहाँ थे, हमारा भविष्य, हमारा भूत ये था, हम 300 साल पुराने हैं, हम 500 साल पुराने हैं। अरे कार तो आपके यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ परदादा के ज़माने से कार है। दिस इज द वे यू रिफ्लेक्ट योर सेल्फ विद इन द सोसाइटी। इफ यू डोंट हैव दैट नॉलेज, आप कहाँ होंगे? आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी याददाश्त खत्म हो गई हो? जिस व्यक्ति की याददाश्त खत्म हो जाती है वो अपने को किसी से रिलेट नहीं कर पाता, माँ बाप से नहीं रिलेट कर पाता, भाई बहन से रिलेट नहीं कर पाता, समाज से नहीं रिलेट कर पाता, अपने गांव से नहीं रिलेट कर पाता, और अपने को कहीं भी नहीं रिलेट कर पाता। ऐसे व्यक्ति को कहीं भी छोड़ दीजिए, आप चला जाएगा। ऐसे समाज की कल्पना कीजिए, ऐसे देश की कल्पना कीजिए जिसकी मेमोरी जा चुकी हो। कहीं आप सोच सकते हैं कि आप चाहेंगे कि मेमोरी चली जाए?
आरिफ भाई ने आज एक बहुत सुंदर सा शेर सुनाया था, अब ओरिजिनल वर्डिंग तो नहीं याद है, लेकिन वो शेर जो है सांतायना का एक बहुत फेमस सेंटेंस है, बहुत फेमस। दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री या दोज हु फॉरगेट देयर हिस्ट्री दे बिकम पार्ट ऑफ हिस्ट्री। क्या सेंटेंस है कि जो लोग अपने इतिहास को नहीं याद रहते वो इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। आरिफ भाई ने जो शेर सुनाया था वो यही था कि जिन्हें अपनी हिस्ट्री नहीं याद रहती उनका जियोग्राफी अभी ख़त्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। रही बात इतिहास लेखन की, पुनर्लेखन की, एक सतत प्रक्रिया है। बता रहे थे नए एविडेंस आते हैं, हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पहले से पता हो। मैं जिस फील्ड में हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में तो बाद में आया, 1921 तक भारत की सभ्यता की शुरुआत 6वीं शताब्दी से होती है। 1922 में हड़प्पा सिविलाइजेशन की डिस्कवरी होती है, आपका इतिहास 3000 BC चला जाता है। उसी तरह से 1950 के बाद आपका इतिहास चला जाता है 8000 BC। तो ये सतत प्रक्रिया है, लेकिन इसमें करना क्या होता है, बराबर इतिहास की पुस्तकों का पुनर्लेखन करने का मतलब ये है कि जो नए एविडेंस आए हैं उनको समाहित किया जाना चाहिए। इस बात का प्रयास होता रहा है। आज मैं यहाँ से कहने में बहुत मुझे गर्व है, मुझे इतनी खुशी होती है कि आज़ाद भारत में पहली बार NCERT की किताबों का जो परिशीलन हुआ 2002 में हुआ। मैं उसके लिए ज़िम्मेदार था, क्योंकि इतिहास की जो नई पुस्तकें लिखी गईं NCERT के लिए, मतलब कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, कक्षा 1 से लेके 12 तक के लिए, मैं उसमें डीपली इन्वॉल्व था। और जो लोग सत्ता में कब थे इस समय हट गए थे, कितना हंगामा मचा था अखबारों में, तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन नाम दिया गया था। लेकिन आज इस बात की खुशी है कि सभी जगह पर बात हो रही है कि कहाँ क्या करना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, 1947 के पहले जब भी इतिहास जो लिखा जा रहा था, दोनों तरफ की बातें थी, इंपीरियलिस्ट भी, नेशनलिस्ट भी थे। इंपीरियलिस्ट अगर लिख रहे थे अंग्रेज या लेफ्टिस्ट लिख रहे थे तो आपके पास RC मजूमदार थे, DC सरकार भी थे, TV महालिंगम भी थे, हाँ, शास्त्री भी थे। लेकिन आज़ादी के बाद ऐसे सब लोगों को या तो ख़त्म कर दिया गया या दबा के बिल्कुल। उसका नतीजा क्या हुआ, आज़ादी के इतिहास को जब देखिए तो शुरू में से एक पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराया गया कि उसी की वजह से आज़ादी मिली। बाद में गांधी भी हटा के एक परिवार को समर्पित कर दिया गया। ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, और ये बात मैं बराबर कहता रहा कि हमेशा कहा जाता है इतिहास में ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, सब कहते हैं। और इस समय तो यूट्यूब पे चाहिए तो 2000 लोग ये कहते मिलेंगे आपको, ये गलत है, ये गलत है। अरे महाराज, ये तो गलत है, लेकिन सही क्या है ये भी तो बताने की कृपा कीजिए। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बिना किताबों के तो नहीं चलेंगे। जो किताबें गलत है अगर उनको हटा दिया जाए तो रिप्लेसमेंट कहाँ है। इस बात को मैं पिछले 20 साल से कह रहा हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि प्रोफेसर कपिल कुमार साहब ने गजब की शुरुआत की। हम लोग जैसा बताया 32 साल के मित्र हैं, और मेरा हमेशा इनसे आग्रह रहा है, कहेंगे हम कहा छोड़ दो सब काम, यूट्यूब नहीं चलेगा क्लासरूम में, न तो यूट्यूब चलेगा आंसर बुक में। लेट अस गेट बैक टू राइटिंग एंड दैट्स व्हाट आई एम वेरी हैप्पी द काइंड ऑफ वर्क ही इज डूइंग। कभी कभी ये लगता है, एक छोटी सी बात मैं कहूँ, छोटी सी ऐड करके ख़त्म करूँगा, कि आईएनए के प्रति कितना दुर्व्यवहार हुआ, आईएनए के लोगों के प्रति कितना दुर्व्यवहार हुआ, ये तो बताया कि किस तरह से आईएनए के लोग या नेवी के लोग जो थे उनको वापस नहीं आने दिया, नौकरी में नहीं दिया गया। इससे बेहतर जरा एग्जाम्पल आप देखिए। मैं एक हैं परवीन कादिर आगा। परवीन कादिर आगा पाकिस्तान की एक लीडिंग, जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान जैसी मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी में परवीन कादिर आगा पाकिस्तान गवर्नमेंट की फाइनेंस सेक्रेटरी होकर रिटायर हुई हैं। मैं उनसे ख़तो किताबत करने लगा, वो ज़रा अलग इशू है, मैं जानता भी नहीं था उन्हें। लेकिन बाद में कुछ ऐसा संबंध डेवलप हुआ कि नाउ ऑलवेज आई एड्रेस परवीन आपा,
and she always addresses me Makhan. जब उनसे मैं करिस्पॉन्डेंस करने लगा तो उन्होंने बाकी चीज़ों के अलावा जो मुझे चाहिए थी एक किताब भेजी। उस किताब को पढ़कर मैं भौचक्का रह गया और कपिल भाई को दिया कि ये किताब लो। वो कौन सी किताब थी? इट वॉज अबाउट ए कर्नल एहसन कादिर। कर्नल एहसन कादिर की किताब है। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में आर्मी कमांडर थे और उतने नहीं, नेताजी के कैबिनेट मिनिस्टर भी थे वो। मैंने पढ़ना शुरू किया, फॉरवर्ड है परवीन कादिर आगा का। आई फर्मली बिलीव दैट इंडिया वुड हैव नेवर गॉट फ्रीडम बट फॉर INA, and I'm proud that my father Ehsan Kadir was part of it. Amazing this. और उस पूरी स्टोरी का सार ये है कि पाकिस्तान में जितने लोग आर्मी से छोड़ के गए थे INA में, उनको वापस आर्मी में लिया गया। एहसन कादिर's elder brother retired as Army Chief of Pakistan, but here people are kept outside. इन सब चीज़ों को हमें बहुत कायदे से करना पड़ेगा और मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत कम हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए तुलसीदास की जो चौपाई है उससे थोड़ा हटें। मात पिता बाल कहीं बुलावें, उदर भरहीं सो कर्म सिखावें। अवधि में है, लेकिन रामायण का ये शब्द है, मात पिता बाल कहीं बुलावें, उदर भरहीं सो कर्म सिखावें। माता पिता अपने बच्चों को बुलाते हैं, सिर्फ वही काम सिखाते हैं जिससे पेट भरे। मेरे ख्याल से आप जहाँ भी हैं, परिवार में, समाज में, जहाँ भी हैं, पेट भरने के अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में। और हमेशा कोई ज़रूरी नहीं कि आप शिखर पे जाएं, ऊंचाइयों पे जाएं। फिराक की एक शेर है, उसी के बाद मेरा इंटरेस्ट है उर्दू लिटरेचर में। और पता है इनको कि 2 वॉल्यूम में मैंने लगभग 800 पेजों में परवीन शाकिर की किताबों का हिंदी में किया, 2 वॉल्यूम में। तो फिराक की एक शेर है, वो गज़ल है, सभी ने बहुत सुना होगा, बहुत प्यार से, हाँ, लेकिन वो गज़ल बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तो उसकी एक शेर है जो छोड़ दिया है जगजीत सिंह चित्रा ने, यानी तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। तो उसकी एक शेर है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं उन्हें उसको पढ़ा था जब मैं BA कर रहा था। वो शेर आज तक मेरी ज़िंदगी के जो एक प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसका हिस्सा है। वो शेर है, जिसे कहती है दुनिया कामयाबी वाय नादानी, जिसे कहती है दुनिया कामयाबी वाय नादानी, उसे किन कीमतों पर कामयाब इंसान लेते हैं। जिसे कहती है दुनिया कामयाबी, बड़ा कामयाब इंसान है, बड़ा कामयाब है, दुनिया कहती है, ज़रा पलट के ये पूछिए कि उस कामयाबी के लिए उसने क्या कीमत अदा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कपिल भाई के इस प्रोग्राम में। Thank you so much, Professor Makhanlal ji. Thank you so much, Tiwari ji. Thank you so much for Kapil sir this time as a speaker. Thank you so much, Speaker ji. Sir is a great writer, a great speaker, a great visualizer, and you will see after the tea break now we will have a cultural program within half an hour. He has also given very good margdarshan for the Dastan Goi, which has been specially tailored on the Punjab freedom struggle with the martyrs in mind. रानी झांसी segment और ये सब कुछ उन्होंने हमारे जो दास्तान गोई करने वाले जो कुलजीत जी हैं, जो उसके स्क्रिप्ट राइटर एंड डायरेक्टर हैं, उनको पूरा उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, उसका हर एक पहलू बताया अपने साथ बिठाकर। तो मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी एंड सर, whether history repeats itself that people
who embrace culture will always go down in the annals of history in golden letters. Am I right? Am I wrong? All of you are history people here. राजा भोज को हम आज भी याद करते हैं. वो राजा, वो संरक्षक, वो लोग जिन्होंने कल्चर को, साहित्य को, कला को प्रमोट किया, वो उनके नाम हम कभी नहीं भूलते इतिहास में. तो कपिल सर, द आर्ट वर्ल्ड हैज नाउ टेकन you also in its fold. You are an artist doubled up as a historian. And by virtue, by Kuljit ji is sitting here only, you will see his beautiful Dastan Goi. It is beautifully done. And sir ने उसके सारे pegs, जिसको हम कहते हैं, creative pegs. And then Kuljit has fleshed it out beautifully with his creativity and his script and Dastan. तो वो रानी झांसी, we are not historians, we are creative people, but sir has. So sir now has also become the creative director and a great storyteller on the traditions of the Azadi. And we see many such things like, skits and plays and the likes of that coming out of your magic, वो कहते थे ना, गिली 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 कम 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 गोगिया पाशा वाला. तो सर वो उसमें से निकालेंगे 2-4 कबूतर and rabbits, and from the heart it will all be history coming out in the form of aesthetics and culture in the times to come. Sir, I'm quite convinced about that when I say that. And that will be a new dimension to your work, and we look forward to that also. I thank everybody present here सभागार में. जो रह गए, जो 1 मिनट मुझे दीजिएगा वर्तिका. जब जो लोग सभागार में रह गए हैं वो वाकई सुनकार श्रोता हैं, जो इतिहास में और हमारी सच्ची कहानियों में, सच्चे किरदारों में इंटरेस्टेड हैं. तो मैं आपका बहुत मन से फ्रॉम द कुमुद्दीवान फाउंडेशन आज साधुवाद भी करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ, और संस्कृति मंत्रालय को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमको सहयोग दिया. ये कार्यक्रम करने का बीड़ा मुझे दिया गया. 3 कार्यक्रम होंगे. ये दिल्ली का कार्यक्रम है, 2 पंजाब में भी इसी महीने कार्यक्रम है. सब सेमिनार इत्यादि कपिल सर के निर्देशन में वहाँ भी हो रहे हैं. पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़, कला भवन में चंडीगढ़ में ये कार्यक्रम प्लान्ड है. और आप सब में से कोई अगर आ सकें चंडीगढ़ तो अवश्य आइएगा. बी इन टच विद कपिल सर. ये कार्यक्रम के लिए हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को जितना भी उनके सहयोग, कोलैबोरेशन के लिए धन्यवाद दें, वो कम होगा. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की कला दर्शन की पूरी टीम हमारे साथ सुबह से यहाँ खड़ी है, सब वॉलंटियर्स. और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी राम बहादुर राय जी का, सच्चिदानंद जोशी जी का, अजय पांड्या जी का जो विभागाध्यक्ष हैं, गीतांजलि का, अक्षय का, प्रेम जी कंसोल पर सुबह से हैं और अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम बाकी है, और उनकी पूरी टीम साउंड पर हैं. पूरी की पूरी जो मीडिया सेंटर की डॉक्यूमेंटेशन की, फोटोग्राफी एट्सेट्रा की टीम है वो IGNCA के पीछे ले रही है सुबह से. आप सब धन्यवाद बहुत करती हूँ मैं आप सबका. ग्रेट जॉब, एंड आप लोगों के बिना ये इवेंट नहीं हो सकता. और अभी फिर धन्यवाद करूँगी ऑडिटोरियम वगैरह के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, एक बार हमारा कल्चरल प्रोग्राम हो जाए. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस टुडे. मैनी लर्निंग एक्सपीरियंसेस मैं आप सबकी का वक्तव्य ग्रीन रूम से सुन रही थी, और बहुत कुछ इतिहास के पन्नों से हम भी जो अपने 12th की पढ़ाई तक नहीं कर पाए, जो आज आप लोगों ने बहुत कुछ उससे हमें भी सिखाया और मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ. एंड हम आइए साथ में एक प्याला चाय पीते हैं. और इतना अच्छा सेमिनार और इतनी अच्छी बातचीत सुन के थकान तो बिल्कुल नहीं होती. आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं है, मुझे मालूम है, किसी के चेहरे पर शिकन नहीं है. चाय पीकर आप हमारे गुरु नानक पब्लिक स्कूल का भंगड़ा है, क्योंकि पंजाब बिना वो चढ़दी कला और भंगड़ा का पूरा नहीं हो सकता. उसके बच्चे प्यारे प्यारे आ रहे हैं भंगड़ा के लिए. उसके बाद मैं कुछ आज़ादी के गीत गाऊंगी जिसमें बैंड कविता वगैरह भी है, सूरज भान जी की और ऐसी कविताएं. तो आप रहें, थोड़ी 4-5 ऐसे गाने हैं. और कुलजीत जी की दास्तान गोई जो सर ने आज़ादी के पन्नों से निकाल कर उनको पेग्स दिए, जिन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग से इतना ब्यूटीफुली सजाया. उसमें गीत भी है और उसमें एक्टिंग भी है. आप ये 3 आइटम हमारे साथ साझा करके ही जाइए, तभी मेरा रंग दे बसंती चोला जो है वो संपूर्ण होगा. ये कहते हुए मैं एक बार फिर सबसे ज़्यादा मेरा धन्यवाद ज्ञापन जो है वो इस सत्र का कपिल जी को है. सर आपके बिना, मतलब
ये कहते हैं ना, कोई कई बार नियति किसी व्यक्ति को इसके लिए चूज करती है। मैं इतिहासकार नहीं हूँ और शायद कभी ऐतिहासिक ऐसा कुछ नहीं होता। टहलते हुए एक बार इसी बिल्डिंग में मैं आई जहाँ हम खड़े हैं आज, और इससे मेरा बहुत पुराना IGNCA से मेरी किताब भी यहाँ से पब्लिश्ड है, मेरा प्रोजेक्ट यहाँ से संगीत का, क्लासिकल म्यूजिक का, आई एम अ म्यूजिशियन। चली गई ऊपर तो देखा इतनी बड़ी बिल्डिंग में आज़ादी का अमृत। मैंने कहा क्या करते हो यहाँ? तो हम ये करते हैं। आपके पास कुछ है कल्चरल? मैंने कहा कल्चरल, वाई नॉट हिस्ट्री एंड कल्चरल। और कहीं ना कहीं दिमाग में कपिल सर का एक, क्योंकि उनसे परिचय मेरा बहुत अच्छा है, मैंने कहा अगर इन्होंने आज़ादी का कुछ भी इन्होंने हिस्ट्री पर दिया ना, तो सर के हवाले करना है कि बहुत अच्छे लर्नेड स्पीकर्स इस विषय पर बोलें एक छत के नीचे। तो एक वो हमारी साधना, कलाकार हमेशा साधना की बात करता है, एक सम्मिलित साधना, एक साझी विरासत जो है वो शेयर हो जाती है, और वो आज हुआ। थैंक यू कपिल सर so much for all through at every step, you know, he's been personally involved, कार्ड के डिज़ाइन से लेके हर कुछ, और बहुत उनका एक मार्गदर्शन। और आप सब जो यहाँ आए, सुबह भी बहुत लोग आए थे, जितने हमारे आज के स्पीकर्स, आप लोग सब चुने हुए जेम्स ऑफ एकेडमिया हैं, मुझे मालूम है। It's not just the biodata, I've interacted with some of you, प्रोफेसर मक्खन लाल जी और दिलबाग जी आए थे, और तिवारी सर बैठे हैं, और नारंग जी इतना सुंदर बोल के गए, साकिब जी, ऑल ऑफ यू। मैं आपको हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे बीच आज आए, और थोड़ा लंच टाइम में असुविधा ज़रूर हुई, जो भी मिसकम्युनिकेशन था या जो भी था उसके लिए मैं पर्सनली आपसे क्षमा मांगती हूँ। कई बार लार्ज इवेंट्स में ऐसा होता है, लेकिन अभी हम लोग सब मिलकर साथ में एक कप चाय पीते हैं और फिर लौटते हैं भंगड़ा इत्यादि के लिए। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो हम चाय के लिए प्रस्थान करेंगे। सर पंजाब के बहुत सारे शहीदों का रिकॉर्ड है सर। हाँ, और सर उनकी कुछ रिजेक्ट फाइलें जो विडोम स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन मांगी, तो इस पर रिसर्च करवा के काम करवाइए सर। भैया रिसर्च देखिए, कहना बहुत आसान है कि रिसर्च करा के काम कराइए सर। रिसर्च भानुमति के पिंडारे में से नहीं निकलती है सर। एक रिसर्च स्कॉलर भी आप लिखते हैं ना, तो 45-50 हजार रुपए महीना तनख्वाह देनी होती है सर। टाइप कराने और वो कराने जाते हैं, तो रिसर्च आजकल हमें हिंदुस्तान में हर कोई कह देता है कि रिसर्च कराइए, हिस्ट्री लिखिए, हिस्ट्री बदलिए, और जब कहा जाता है कि अगर कोई कंट्रीब्यूट करो तो 100 रुपए कोई देने को तैयार नहीं होता उस काम सर मैंने 200 मैं आपकी बात नहीं कर मैंने 200-250 आदमियों का रिकॉर्ड सर्च किया जो हरियाणा के हैं, पंजाब के, ओल्ड पंजाब के। सर, अपनी जेब से लिमिट होती है रिसर्च करने की। तो आप उस उनको सर अभी तक ये सम्मान भी नहीं मिला, या वो तो खैर ओपन हिस्ट्री देगी साहब, हमारा उसमें सरकार से मदद कोई करिए लेना सर। देना नहीं है। उसमें थोड़ी हेल्प कराइए। भैया नहीं कर सकते, सरकार हमारी नहीं सुनेगी। जी कुछ आ रहे थे। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। माइक ऑन कर लीजिए। Am I on? वर्तिका जी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मेरा नाम वर्तिका नंदा है, लेडी श्री राम कॉलेज में जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सारगर्भित और बहुत मीनिंगफुल सेशन मुझे लगा। कुछ बातें छोटी सी ऐड करना चाहती हूँ जो मुझे, जिसके बारे में थोड़ा सा इल्म है, और शायद उसका जिक्र हमारे आने से पहले हुआ हो। भगत सिंह जब जेल में थे तो वो जेलर के ज़रिए कुछ किताबें मंगवाते थे और उन्हें बहुत शौक़ से पढ़ते थे। कुछ किताबें मना हुई थी, कुछ उन्होंने पढ़ी। उस दौर में जो मैंने जाना, शायद उन्होंने एक डायरी लिखी थी और उन्होंने जेलर से कहा था फांसी से पहले कि इसे संभाल के रखना। और कुछ ही किताबों में दर्ज है कि शायद फांसी से के कुछ ही दिनों बाद जेलर ने किसी डर के वजह से उस डायरी को जला दिया। पर हाल के दिनों में करीब 3 साल पहले एक किताब छप कर आई है जो भगत सिंह की जेल डायरी है। ये मैं नहीं जानती ये कितनी ऑथेंटिक है, इसलिए मैं इस बात को आपके सामने रखना चाह रही हूँ। ये बात सही है कि इतिहास जो स्टूडेंट्स के पास पहुँचता है और जो इतिहास असल में होता है, उस लंबी यात्रा के बीच में सच कई बार छिप भी जाता है। दूसरी कुछ और किताबें जो जेल के अंदर से लोगों ने अलग अलग समय पर लिखी और जिनका ताल्लुक उस दौर से है, जैसे औरबिंदो 365 दिन जब वो जेल में थे, उन्होंने जेल में जाने के बाद पहले दिन और अंतिम दिन जो लिखा, और उसके बाद औरबिंदो की जेल की डायरी आई
जो आज भी काफ़ी प्रचलित है और लोग उसे पढ़ते हैं। तीसरा हिस्सा है सुभद्रा कुमारी चौहान का। जब वो जबलपुर की जेल में थी, उन्होंने लिखा खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता तो प्रचलित हुई, लेकिन जो उनका लिखा हुआ हिस्सा था वो आत्मकथा के तौर पर है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि इन तमाम लोगों ने जिन्होंने यातनाएं सही, खास तौर पर देश को आज़ाद करने के लिए, उनके मेमोइर्स दो हिस्सों में हैं, या तो आत्मकथा के हिस्से में या फिर किसी और ने जो उस बात को सुना और लिखा। यहाँ ज़रूरी बात ये भी है कि आप जैसे हिस्टोरियन अगर एक बार इस नज़र से भी इसे देख लें कि जो लिखा जा रहा है और जो स्कूलों और कॉलेजेस तक पहुँच रहा है वो कितना सही है, और अगर वो पूरी तरह से सही नहीं है तो उसे कैसे हटाया जाए। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मुझे जो भी याद आ रहा था, जयप्रकाश नारायण ने जब उन्हें एक तरह की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में चंडीगढ़ में रखा गया तो उनके पास अखबार पढ़ने के लिए सिर्फ ट्रिब्यून थी, और उन्होंने इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि मुझे इतनी इजाज़त भर दे दी जाए कि मैं कभी कभार लोगों से मिलूं, और उन्होंने उस दौर को लेकर लिखा जिसे काफ़ी हद तक ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन चैलेंज ये है जो आज़ादी से पहले का दौर था, और क्योंकि बहुत ज़्यादा समय गुजर गया है, आप जैसे हिस्टोरियन ही शायद उसको एक लेंस से देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कि और भी ऐसा इतिहास छात्रों तक पहुंचे या अध्यापकों और उसके बाद बाकी स्कॉलर्स तक पहुंचे जो ऑथेंटिक नहीं है, तो उसको भी एक बार जांचना शायद ज़रूरी होगा। मुझे यही कहना था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बराबर में एक इतिहासकार बैठे हुए हैं जिन्होंने उस इतिहास को चैलेंज करते हुए 2002 में एनसीईआरटी के लिए नई इतिहास की किताब लिखी थी, और उन्होंने क्या भुगता कि 2005 में वो किताब विड्रॉ हो गई, 4 में जुलाई सरकार आते ही, और इस इतिहासकार को 11 साल तक इसकी नौकरी पे सस्पेंड रखा गया। निकाल दिए, सस्पेंड नहीं निकाल दिया। और कोई जो है, I had to go up to Supreme Court to get my job back and the salary. कोई खड़ा नहीं हुआ आकर के। आप उम्मीद करते हैं कि इतिहास बदला जाएगा? जिस सरकार का एचआर नहीं का कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर टीवी के ऊपर हंस के बोलता है कि हमने तो एनसीईआरटी की किताब में कॉमा और फुल स्टॉप तक चेंज नहीं किया। हम लोग जो कर रहे हैं अपने जुनून में अपना प्रयास कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, इस पे भी लिख रहे हैं, लेकिन जो प्रोफेसर मक्खनलाल हमेशा कहते हैं, अभी हम एक सेमिनार में थे 2 दिन पहले, नहीं इनकी बुक रिलीज थी चंद्राचूर की, तो वहां एक सवाल पूछ लिया एक साहब ने कि साहब मैं वो आईएएस की एकेडमी चलाता हूँ, आईएएस के लोगों को पढ़ाता हूँ, तो ये सब आप लोग जो वक्ता हिस्ट्री बोले हैं आज, इन बच्चों को बताइए कि ये क्या जवाब लिखे आईएएस के अंदर। मैंने कहा इन बच्चों को कहना इन जवाबों को भूल के भी ना लिख दे अगर उन्होंने आईएएस बनना। आपके मिनिस्टर सर चाय लग गई है, हुआ कि वहाँ पे वो लगाया जाए स्टेच्यू नेताजी, चाय लग गई। और हरजीत पुरी कहते हैं मैं नेताजी की एशेज को सैल्यूट करने जाता था। ऐसे है कि ये बात करना बहुत आसान होता है कि इतिहास फिर से लिखा जाए। लिखेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए कोई तैयार हो आएगा। मेरा एक बड़ा एग्जाम्पल है, मैं अपने को बहुत एग्जाम्पल नहीं मानता। 2004 में जैसे ही एनडीए की सरकार गई, मुझे पहले सस्पेंड किया गया, फिर डिसमिस किया गया। चार्जेस जो भी लगाए गए, असली चार्ज ये था कि एनसीईआरटी की किताब को जो 1947 से जो लोग काबिज थे 2002 में आके हटा दिया गया। जैसा इन्होंने कहा, आई हैड टू गो अप टू सुप्रीम कोर्ट। उस जमाने में जो लोग मित्र थे कभी, वो भी बगल से निकल जाया करते थे। ये छोड़ दीजिए, कपिल जैसे एक आध दो दोस्त थे जिन्होंने कभी पूछा कि घर कैसे चलता है। बाकी स्थिति अलग होती है। हमें एक ही चीज़ की बहुत खुशी है। आप वर्तिकानंदा जी जरा सा पुराना समय देख लीजिए, 1998 से लेके अभी 2014 तक
क्या स्थिति थी, कितने इतिहासकार बोल रहे थे, और आज देख लीजिए कितने बोल रहे हैं। हर आदमी को इच्छा होती है कि जिधर धारा बह रही है उधर ही चले जाएं। यूट्यूब पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत कुछ है, लेकिन जरा ये देख लीजिए पब्लिकेशन में कहाँ क्या है। थैंक यू। जो इतिहास बात कर रहे हैं ना कि रीराइट की जाए हिस्ट्री, इतिहास हिस्टोरियन लिखता है, गधे नहीं लिखते। और जो कमेटीज बनी है जिन्हें हिस्ट्री की नॉलेज